Hello dear students of class 12. Once again I welcome you all in this online session of video classes of mathematics. So today we are going to start chapter number 5 and the name of the chapter is Continuity and Differentiability. Again I am going to repeat the name of the chapter. Chapter number 5 is Continuity and Differentiability. I have also written on the board. Since now see, before starting the exercises, let us discuss the basic concept of this chapter. This chapter is classified in two parts, we can say, or we can divide these chapters into further two chapters. First chapter is known as continuity, and another part is known as differentiability. These both are different topics, but interrelated to each other. First one is continuity, and second one is differentiability. Since in your chapter, the very first exercise of this chapter, that is exercise 5.1, is related to continuity, and the remaining exercises 5.2 to the very last exercise, miscellaneous exercise, they all are related to differentiability. That means differentiation. Now, we are not going to start with exercise 5.1. We are going to start with exercise 5.2, that is based upon the concept of differentiation, that is differentiability also known as. So, now, why I have started this topic? Because this topic we have already studied a little bit in your 11th, that is previous standard. That was chapter number 13, limits and derivatives. So in that chapter you have studied a basic of that, differentiation, like the basic formulas and quotient rule, product rule, like that, all that basic formulas. So again, in the very first lecture we are going to just discuss the basic concept of differentiation, that is just defined as a differentiability, जिसको यहाँ पे differentiability कहा गया है. नहीं तो सिंपल वर्ड्स में हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं, और एक और वर्ड से जाना जाता है डेरिवेटिव. डेरिवेटिव का मतलब ही क्या होता है, डिफरेंशिएशन. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू जस्ट डिस्कस द वेरी बेसिक फॉर्मुलास ऑफ डिफरेंशिएशन, दैट इज डेरिवेटिव. डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन बोलिए, एक ही बात है. अभी डेरिवेटिव को हम डिनोट कैसे करते हैं? सो वी यूज्ड टू डिनोट इट बाय डी अपॉन dx. कैसे डिनोट करते हैं फ्रेंड्स? डी अपॉन dx से इसको डिनोट किया जाता है. ये d by dx का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x. दिस d by dx मींस डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x. Why I am saying x? Because in this denominator it is mentioned dx. That means differentiation with respect to x. अगर मान लीजिए आपके पास x की जगह यहाँ पर y होगा, तो आप लोग कहेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y. लेकिन अभी यहाँ पे x लिखा हुआ है, सो यू विल से डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x. सो अभी हम लोगों ने क्या करना है, डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मुले स्टडी करेंगे, बेसिक फॉर्मुले, जो मैं सोच रहा हूँ शायद आप लोगों ने प्लस वन क्लास में भी सीखे हैं. दे आर वेरी बेसिक फॉर्मुलाज. We will start with the very first formula, that is known as algebraic formula, the derivative of algebraic function, that is dy dx of x raised to power n. सबसे पहले जो हम फॉर्मूला स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं, वो फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ x raised to power n, और वो फॉर्मूला होता है आपके पास n into x raised to power n minus 1. x की पावर n कोई भी फंक्शन होगा, यहाँ पे n stands for स्टूडेंट्स एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है आपके पास, ठीक है. n stands for एनी नंबर, चाहे वो नेचुरल नंबर हो चाहे जो मर्जी नंबर हो. x की पावर n की अगर आप लोगों ने डिफरेंशिएशन करनी है, दिस d by dx डिनोट्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और करनी किसकी है, x की पावर n की डिफरेंशिएशन करनी है. सो उसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला है n into x raised to power n minus 1. जो भी यहाँ पे आपके पास n वैल्यू पावर होगी, वो आप लोगों ने आगे मल्टीप्लाई कर देनी है, और x की पावर क्या हो जाएगी, n minus 1, मतलब n में से एक नंबर कम हो जाएगा. ये आपके पास फर्स्ट फॉर्मूला है. नाउ विल गो फॉर द सेकंड फॉर्मूला. सेकंड फॉर्मूले के लिए देखिए, अभी आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, जैसे आप सब लोग जानते हैं. यू आर हैविंग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दैट आर नोन एज साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक. इन सब के भी अभी हम लोग फॉर्मुलेस देखेंगे डिफरेंशिएशन के. सो सेकंड फॉर्मूला हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स. सो साइन एक्स की डिफरेंशिएशन इज कॉस एक्स. साइन एक्स की डिफरेंशिएशन आपके पास क्या है, कॉस एक्स. फ्रेंड्स अगर आप लोग इनके प्रूफ चाहते हैं, तो आप लोगों ने प्लस वन क्लास में देखे होंगे बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आप लोगों ने इन सबके प्रूफ सॉल्व किए होंगे, और हमारे स्कूल में भी हम लोगों ने करवाए हैं, और जिस भी स्कूल से आप लोगों ने 11th किया है, वहां पे आप लोगों को जरूर 11th क्लास में फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू इसकी डिफरेंशिएशन सिखाई गई होगी. सो इन दिस प्लस टू क्लास वी आर नॉट गोइंग टू डू द प्रूफ्स ऑफ दिस formulas.
Now third formula is d by dx of, that is differentiation of cos x. So differentiation of cos x is minus sin x. cos x की differentiation क्या है? Minus sin x. Number 4, differentiation of tan x. अगले differentiation क्या है स्टूडेंट्स? tan x. और tan x की differentiation आपके पास है secant square x. tan x की differentiation क्या होती है? Secant square x. Fifthly, d by dx of cot x. cot x की डिफरेंशिएशन क्या है स्टूडेंट्स? माइनस ऑफ cos x स्क्वायर x. cot x की डिफरेंशिएशन क्या है? माइनस ऑफ cos x स्क्वायर x. नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला इज फॉर्मूला नंबर 6. as we are going for the trigonometric functions, next trigonometric function or next trigonometric ratio is sec x. So differentiation of sec x is sec x into tan x. आपके पास sec x differentiation क्या होती है? sec x into tan x. Nextly, differentiation of cosec x. cos x की differentiation क्या है स्टूडेंट्स? माइनस cosec x into cot x. माइनस cosec x into cot x. ये आपके पास डिफरेंशिएशन है cosec x की. ये आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे. उसके बाद अब आपके पास एक फंक्शन आता है लॉगरिथमिक फंक्शन, जिसको आप log ऑफ x कहते हैं. वो log ऑफ x कौन सा फंक्शन होता है? लॉगरिथमिक फंक्शन. सो अगर आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए, log ऑफ x आ जाए, तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? 1 अपॉन x. log ऑफ x की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x. नेक्स्ट e रेज टू पावर x. नेक्स्ट इज e रेज टू पावर x. ये e रेज टू पावर x क्या है स्टूडेंट्स? e स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंट. तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके पास यहाँ पे गिवन है e रेज टू पावर x. उसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है स्टूडेंट्स? एज इट इज e रेज टू पावर x. आपने कुछ भी नहीं करना है. जो e रेज टू पावर x आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, उसकी डिफरेंशिएशन एज इट इज होगी e रेज टू पावर x. नेक्स्ट, अब स्टूडेंट्स देखिए, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, लेकिन जस्ट एक बेसिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूं कि इसकी डिफरेंशिएशन है क्या. अगर मान लीजिए आपने कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन करनी हो, अगर मान लीजिए कोई भी फंक्शन कांस्टेंट है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट? कांस्टेंट मींस जस्ट न्यूमेरिक वैल्यूज, दैट इज 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन. ऐसे करके कोई भी अगर आपको नंबर्स गिवन है और उन नंबर्स की आप लोगों ने क्या करनी है? डिफरेंशिएशन फाइंड करनी है. तो नंबर्स की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? 0. क्या हो जाएगी? 0. कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी आपके पास? 0. जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए आपने 100 की डिफरेंशिएशन करनी है, तो 100 की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 0. या आपके पास कुछ बेसिक फॉर्मूले थे डिफरेंशिएशन फाइंड करने के. इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग कुछ और फॉर्मूले स्टडी करेंगे. वो फॉर्मूले रूल के अकॉर्डिंग है. नाउ वी स्टडी 2 rules. They are very important rules that they need to be keep in mind for using for solving differentiation questions. Now, those very important 2 rules are: first one is known as product rule and second one is rule is known as quotient rule. ये दोनों rules आप लोगों ने सिर्फ +1 क्लास में भी पढ़े होंगे, but in this session we are going to just revise those concepts. So I'm going to write down those 2 rules. First rule is known as product rule. First rule is known as product rule. अब सिर्फ ध्यान से देखिए, आपको नेम से ही क्लियर हो रहा है कि रूल का नाम क्या है? प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई 2 फंक्शंस गिवन होंगे, सिर्फ अगर तो आपके पास एक ही फंक्शन गिवन है, मान लीजिए sin x, तो sin x की डिफरेंशिएशन आपको पता है कि हम लोगों ने फॉर्मूले स्टडी किए हैं, cos x होता है. लेकिन अगर मान लीजिए आपको 2 फंक्शंस गिवन है, वो भी प्रोडक्ट की फॉर्म में. प्रोडक्ट की फॉर्म में मतलब इनटू की फॉर्म में, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में. 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आप लोगों ने उनकी डिफरेंशिएशन फाइंड करनी है, तो उसके लिए क्या अप्लाई होता है आपके पास? प्रोडक्ट रूल. सो प्रोडक्ट रूल कैसे लिखेंगे सर? देखो, b by dx ऑफ u into v. मतलब आप लोगों के पास 2 फंक्शंस हैं, एक u है और एक v है, और उनके बीच में कौन सा साइन है? इनटू का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, या फिर प्रोडक्ट का साइन है. तो आप लोग क्या रूल यूज करेंगे? प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे. b by dx मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ u into v. और वो रूल है आपके पास फ्रेंड्स, u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u. क्या रूल है? u एज इट इज रहेगा, कोई डिफरेंशिएशन नहीं करनी है. डिफरेंशिएशन किसी करनी है? v की. प्लस अभी v एज इट इज रहेगा,
डिफरेंशिएशन करना है यू की, वन बाय वन। यू को एज इट इज रखिए, वी की डिफरेंशिएशन कर दीजिए, प्लस वी को एज इट इज लिख दीजिए, यू की डिफरेंशिएशन कर दो। ये तो है आपके पास फ्रेंड्स प्रोडक्ट रूल। फ्रेंड्स इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, u into v whole dash, u into v whole dash। now friends what is the meaning of this dash? ये dash का मतलब होता है फ्रेंड्स यहाँ पे डिफरेंशिएशन, d for dash and d for differentiation। आप मन में याद रखने के लिए याद कर सकते हैं कि d से dash, d से differentiation। so this dash denotes differentiation of u into v। so इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम इसी के अकॉर्डिंग लिख लीजिए, u into v dash। सर इस जस्ट डी बाई डिक्स को मैं डैश की फॉर्म में लिख रहा हूं, यू एज इट इज रहेगा, वी की डिफरेंशिएशन मतलब वी डैश, प्लस वी एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ यू। ये फॉर्मूला हो जाएगा, यू एज इट इज रहेगा, वी की डिफरेंशिएशन प्लस वी एज इट इज यू की डिफरेंशिएशन। ये है आपके पास फ्रेंड्स प्रोडक्ट रूल। जब आपके पास दो फंक्शंस गिवन होंगे प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो आप लोगों ने क्या यूज करना है, प्रोडक्ट रूल यूज करना है। सेकेंडली वी विल गो फॉर द नेक्स्ट रूल, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रूल। जैसे स्टूडेंट्स दो फंक्शंस अगर मान लीजिए आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्म में है, अगर मान लीजिए क्वोशंट की फॉर्म में होंगे, क्वोशंट का मतलब होता है अपॉन या फिर रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होंगे, जैसे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्वोशंट रूल। अब अगर मान लीजिए आपके पास अपॉन की फॉर्म में दो फंक्शंस हैं, अपॉन मतलब रेशनल नंबर, कोई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपके पास अलग अलग है, यू आपका न्यूमरेटर है, वी आपका डिनोमिनेटर है। अगर इस टाइप से आपके पास एक अपॉन की टर्म्स में फंक्शन है, क्वोशंट की फॉर्म में फंक्शन है, और आपने इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है देखो। सबसे पहले अपॉन में वी का स्क्वायर, वी मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, स्क्वायर करना है, डिफरेंशिएशन नहीं करना, जस्ट स्क्वायर को एज इट इज लिख दीजिए। उसके बाद स्टूडेंट ध्यान रखना है आप लोगों ने थोड़ा सा, प्रोडक्ट रूल में हम लोगों ने यू से स्टार्ट किया था, यू आपके पास फर्स्ट फंक्शन है, वी आपके पास सेकंड फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, यू से नहीं स्टार्ट करना, वी से स्टार्ट करना है। सो वी एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ यू। प्रोडक्ट रूल में आपके पास प्लस आया था, लेकिन क्वोशंट रूल में माइनस आएगा, माइनस यू एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ वी। थोड़ा सा चेंज है, प्रोडक्ट रूल में आपके पास प्लस आता है, क्वोशंट रूल में माइनस आएगा। प्रोडक्ट रूल में आप लोग यू से स्टार्ट करते हैं, क्वोशंट रूल में वी से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा और चेंज है, और यहाँ पे अपॉन में वी का स्क्वायर। जैसे हम लोग स्टूडेंट्स प्रोडक्ट रूल को डैश के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया था, आप लोग यहाँ भी कर सकते हैं, वो हो जाएगा यू अपॉन वी होल डैश इज इक्वल्स टू अपॉन में वी का स्क्वायर, वी एज इट इज यू डैश माइनस यू एज इट इज वी डैश। ये आपके पास है क्वेश्चन रूल। अगर मान लीजिए आपके पास दो फंक्शंस हैं अपॉन की टर्म्स में और आप लोगों ने उनकी डिफरेंशिएशन करनी है, तो ये क्वेश्चन रूल आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नाउ दिस वाज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव। नाउ डायरेक्टली वी शैल मूव टू द एक्सरसाइज 5.2। And before that, let me remind you, students, one more rule you have studied in your 11th standard, that was chain rule. That was chain rule. Now, students, chain rule is not a कोई अलग खास तरीके कोई रूल नहीं है, जैसे फॉर्मूला नहीं है उसका, सिर्फ एक बेसिक कंसेप्ट है कि अगर मान लीजिए आपके पास जो क्वेश्चन है वो चेन की टर्म्स में है, चेन इन द सेंस वो हम एक क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर होगा कि कैसे उस चेन रूल को आप लोगों ने अप्लाई करना है। सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 5.2 का। बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़े हैं, तो ये ज्यादा मुश्किल आप लोग को नहीं लगेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोगों ने फाइंड करनी है डिफरेंशिएशन किस चीज की, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसकी आप लोगों ने क्या करनी है, डिफरेंशिएशन करनी है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स मीन्स डिफरेंशिएशन किसकी करनी है आप लोगों ने, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 की आप लोगों ने डिफरेंशिएशन करनी है। लेट अस डिफरेंशिएट। फ्रेंड्स देखो चेन रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। अभी चेन रूल क्या है, चेन रूल के लिए आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है फ्रेंड्स, अगर आप चेन ध्यान से देखें तो चेन क्या होती है, चेन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिंग्स जॉइंड टुगेदर इन अ बॉन्ड। अगर आप कुछ रिंग्स को स्टूडेंट्स बॉन्ड में ज्वाइन कर करके सारे रिंग्स को ज्वाइन कर दे, कड़ियों को ज्वाइन कर दे, तो एक चेन फॉर्म होती है। वैसे आप लोगों ने यहाँ पे उन सारे रिंग्स को ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करना है देखो, सबसे पहले आप लोगों ने क्या देखना है, जो सबसे बाहर जो आपका फंक्शन नजर है, बाहर इन द सेंस फ्रेंड्स देखो, बिफोर दैट
I would like to write down this function sine of sorry I have written here sine square, but this was sin x square plus 5. sin x square plus 5 ये आपके पास क्वेश्चन है, ऊपर सही है, नीचे मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। ये आपके पास फंक्शन है जिसकी आप लोगों ने डिफरेंशिएशन करनी है, sin ऑफ x square plus 5। सबसे पहले आपको स्टूडेंट सबसे बाहर जो फंक्शन नजर आ रहा है, बाहर इन द सेंस ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के बाहर क्या नजर आ रहा है स्टूडेंट, साइन। तो आप लोगों ने सबसे पहले साइन की डिफरेंशिएशन करनी है, ये कहलाता है चेन रूल। सबसे पहले जो बाहर फंक्शन है साइन, उसकी डिफरेंशिएशन कर दीजिए। साइन के हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़ा है स्टूडेंट्स, साइन की डिफरेंशिएशन होती है कॉस। सो कॉस ऑफ एंगल सेम एज इट इज, एंगल एक्स नहीं आएगा, जो यहाँ पे एंगल आपको क्वेश्चन में गिवन है वो सेम एज इट इज आ जाएगा, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। आप लोग सोच रहे होंगे शायद क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। नो, आप लोगों ने यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करना है। वो चेन रूल कैसे फ्रेंड्स, जैसे आप लोगों ने अंदर साइन की डिफरेंशिएशन की है, वैसे ही आपके पास अंदर एंगल की भी डिफरेंशिएशन होगी। ये होता है चेन रूल। और कैसे, बीच में कौन सा साइन आएगा, इनटू, मतलब मल्टीप्लिकेशन का। सो मल्टीप्लिकेशन के साथ अब आप लोगों ने एंगल की भी डिफरेंशिएशन करनी है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। डिफरेंशिएशन कर देते हैं, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इनटू एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, मैं नीचे आपको समझा देता हूं। फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, x रेज़ टू पावर n इज इक्वल्स टू n इंटू एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1। सो इसी के अकॉर्डिंग अगर आप लोगों ने एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर n, यहाँ पे n की वैल्यू आपके पास 2 गिवन है, तो n आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और x की पावर क्या हो जाएगी, n माइनस 1। n यहाँ पे 2 है तो 2 माइनस 1 इज 1 और x की पावर 1, या फिर सिंपल x, तो क्या हो जाएगा 2x। तो यहाँ पे x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन हो जाएगी फ्रेंड्स, तो x, ये आपको फेयर में दिखाने की जरूरत नहीं है, हाँ फॉर्मूला आप जरूर दिखाइए फेयर में साइड में, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लीजिए और ये फॉर्मूला आप लिख दीजिए। 2 फॉर्मूले फ्रेंड्स आप लोगों ने यहाँ पे यूज किए हैं, तो प्लीज ध्यान रखिए ये दोनों फॉर्मूले जो आप लोगों ने यूज किए हैं, मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने लेफ्ट साइड में लिखने हैं, राइट साइड में लिखने हैं। मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है बोर्ड में, लेकिन आप लोगों ने राइट साइड में लिखने हैं 2 फॉर्मूले। सबसे पहला फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का, जो कि इसके इक्वल है कॉस एक्स। एक और फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया है एक्स रेज़ टू पावर n का, वो किसके इक्वल है, n इंटू एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1। अगेन आई एम सेइंग ये दोनों फॉर्मूले आप लोगों ने यहाँ पे राइट साइड में मेंशन करने हैं, बिकॉज फॉर्मूले लिखने के भी आपके पास क्वेश्चन में मार्क्स होते हैं। सो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x प्लस, नाउ स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखें, 5 आपके पास क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन की डिफरेंशिएशन हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है 0। सो बस इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए, 2x प्लस 0 इज 2x, सो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x। सर ध्यान से देखें, आप आंसर इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग सोचें कि इस 2x को आप इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज रॉन्ग, वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपके पास कॉस का एंगल है और ये जो आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है ये पूरी कॉस की टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप कोई भी गलती ना करें, बेहतर है कि आप इस 2x को आगे प्री मल्टीप्लाई कर दीजिए कॉस से, ऐसे लिख दीजिए 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। अगेन आई एम सेइंग अगर आप इतना भी आंसर छोड़ेंगे तो दैट विल बी करेक्ट, लेकिन प्लीज इसको इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, बट हियर इट इज योर आंसर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जो आपको चाहिए था, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसी के साथ आप एक क्वेश्चन और भी कर सकते हैं। लेट अस डू द वेरी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। दो क्वेश्चंस हम लोग इस एक्सरसाइज से करेंगे एंड देन वी विल एंड अप दिस एक्सरसाइज। लास्टली वी विल डू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स आपके पास, कॉस ऑफ रूट एक्स, कॉस ऑफ रूट एक्स। अब इसकी डिफरेंशिएशन आप लोगों ने करनी है, करते हैं फ्रेंड्स। किस क्या फाइंड करना है आप लोगों ने, डिफरेंशिएशन फाइंड करनी है किसकी, कॉस ऑफ रूट एक्स की। नाउ स्टूडेंट्स अगेन वी विल अप्लाई चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है, सबसे पहले आप लोगों ने कॉस की डिफरेंशिएशन करनी है, वो क्या होता है माइनस साइन। कॉस का एंगल आपके पास यहाँ पे क्या गिवन है, रूट एक्स, सो माइनस साइन ऑफ
रूट एक्स। नाउ इनटू, जैसे आप लोगों ने वहां पे साइन के एंगल की डिफरेंशिएशन करी थी, वैसे यहां पे इसके एंगल की डिफरेंशिएशन हो जाएगी डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। अब आप लोगों ने रूट एक्स की डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे देखिए, माइनस साइन ऑफ रूट एक्स इंटू, सिंस यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहला फॉर्मूला यूज किया है cos x का, तो लिख दीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज इक्वल्स टू माइनस साइन x। दूसरा फॉर्मूला जो आप लोग यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए, आप इस रूट एक्स को कैसे लिख सकते हो, ध्यान से देखिए, यू कैन राइट डाउन दिस रूट एक्स एज एक्स रेज टू पावर हाफ, लिख सकते हैं आप लोग, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर हाफ, तो एक्स की पावर हाफ की डिफरेंशिएशन अब हम लोग करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। सो डिफरेंशिएशन कीजिए स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला यूज करते हुए यहाँ पे आप लोग माइनस साइन ऑफ रूट एक्स इंटू, फॉर्मूला क्या है, n आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो हाफ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x की पावर क्या हो जाएगी, हाफ माइनस 1, मतलब n माइनस 1 है तो हाफ माइनस 1, और हाफ माइनस 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस हाफ, माइनस हाफ। आप आंसर इतना भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर नेगेटिव, अगर x की पावर नेगेटिव है तो उसका मतलब है कि वो वाली टर्म आपके पास डिनोमिनेटर में है, तो आप लोग डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं x की पावर हाफ। नाउ अगेन x की पावर हाफ मींस रूट x, x की पावर हाफ क्या होता है, रूट x, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है माइनस साइन रूट x अपॉन 2 रूट x। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इस रूट एक्स और रूट एक्स को कैंसिल मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो रूट एक्स है ये साइन का एंगल है, और ये रूट एक्स इंडिपेंडेंट टर्म है, ये आपका रिक्वायर्ड हो जाएगा आंसर। इस फॉर्म में भी आप लोग आंसर छोड़ सकते हैं और ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हैं, जो कि आपका क्या है, रिक्वायर्ड आंसर। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 के 2 क्वेश्चंस किए हैं। लेट मी रिमाइंड यू हैव नॉट टू डू क्वेश्चन नंबर 10 एंड 9 इन योर फेयर नोटबुक, यू हैव टू जस्ट डू क्वेश्चन नंबर 1 to 8। फर्स्ट और 8 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे किया है, रिमेनिंग क्वेश्चंस आप लोग खुद कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो, एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम you can ask in our WhatsApp group, or also you can ask in the comment section of this YouTube video. So thank you students, we are ending the session here right now. Thank you and have a nice day.